وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کریم نے انسان دے اوپر جتنیاں عبادتاں بھی فرض کیتیاں او دے اندر فائدہ انسان دا ہی ہے. اللہ دی عبادت ساری دی ساری مخلوقاں مل کے کریں تو او دی بادشاہی دے اندر کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے. اور اگر ساری مخلوقات مل کے اللہ دی عبادت خدا نخواستہ چھوڑ دیں تو او دی بادشاہی دے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. لیکن اس باوجود اللہ کریم نے انسان دے اوپر کچھ عبادات جڑیاں فرض کیتی ہیں او دے اندر انسان دا ہی فائدہ ہے. ورنہ اللہ دی عبادت کرن واسطے اللہ دے فرشتے ہما وقت قیام دے اندر، رکوع دے اندر، سجدے دے اندر موجود ہیں. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون. رات دن اللہ دی تسبیح دے اندر اللہ دے فرشتے لگے ہوئے. لا یفترون، اللہ دی عبادت دے اندر وہ سستی نہیں کرتے. اور دوسرے مقام تے فرمایا کہ لوگوں جڑا آسمان ہے نا وہ چر چرا رہا ہے، چر چرانا پیا ہے، آوازاں نکال رہا ہے. فرمایا نکالنی چاہیے نا آسمان نو آوازاں. کیوں کہ 4 انگلیاں دے برابر بھی آسمان تے جگہ خالی نہیں جتھے اللہ دے فرشتے قیام، رکوع، سجدے دے اندر اللہ دی عبادت نہ کر رہے. فرمایا معراج والی رات مینوں بیت المعمور دسیا گیا. بیت المعمور فرشتیاں دی عبادت گاہ ہے، کعبہ ہے. بیت اللہ دے بالکل اوپر 7 آسماناں دے اوتے بیت اللہ دے بالکل اوپر، جیسے اللہ نے اہل اسلام واسطے بیت اللہ مقرر کیتا ہے، فرشتیاں واسطے بیت اللہ دے اوپر اللہ نے بیت المعمور بنایا ہے جتھے فرشتے اللہ دی عبادت کرتے ہیں. فرمایا کہ معراج والی رات مینوں بیت المعمور دکھایا گیا اور دسیا گیا کہ اس اندر عبادت کرن واسطے ہر روز فی کل یومن، ہر روز 70,000 فرشتہ داخل ہوتا ہے کہ اس اندر داخل ہو کے اللہ دی عبادت کرے. اور جس نو ایک دفعہ داخلہ مل جاتا ہے اس نو دوبارہ پھر وہ موقع نصیب نہیں ہوئے گا. اتنے زیادہ فرشتے اللہ دی عبادت کرنے والے. تو ساری عبادات دے نال اللہ دی بادشاہی دے اندر کوئی اضافہ نہیں ہونا. اللہ نے نماز، اے روزہ، اے حج اور زکوٰۃ انسان دے اوپر اس واسطے فرض کیتے. 2 فائدے. پہلا اس واسطے کہ انسان دے گناہ معاف ہو جائے، اور دوسرا فائدہ ہے کہ میری عبادت کر کے یہ بندہ ترقی حاصل کر لے، درجے حاصل کر لے، میں اللہ دے قریب ہو جائے. اگر گناہ نہیں بھی تو عبادت خوب کرے، روزہ رکھے، نمازاں پڑھے، تاکہ میں اللہ دے قریب ہو جائے. اس واسطے اتنے بھی فرمایا
अकीमिस सलाता, नमाज कायम करो, तरफ यल्लैल, रात दिन दे दोनों किनारियां दे अंदर, दिन दे दो किनारे, एक है जवाल तो पहले, दूसरा किनारा है जवाल तो लैके गुरूब आफ्ताब तक। पहले असी नमाज पढ़ने वो पढ़ने ज़ोहर दी नमाज, और जवाल तो बाद दूसरे किनारे दे अंदर असी असर और ज़ोहर और असर पढ़ने, दिन दे पहले किनारे दे अंदर असी फजर पढ़ने। तो इन्हां दोनों किनारियां दे अंदर अल्लाह कह रहे नमाज पढ़ो, यानी फजर भी अदा करो और असर और मगरिब भी अदा करो, ज़ोहर और असर भी अदा करो। और फरमाया वज़ुलफ़म मिनल लैल, रात दियाँ कुछ हिस्से दे अंदर, कुछ घड़ियाँ दे अंदर भी इबादत कर लो। सूरज गुरूब होने तो बाद मगरिब और इशा दी नमाज, तहज्जुद दी नमाज। फरमाया इन्ना नमाज़ां दी पाबंदी करो, अल्लाह फ़ायदा की होएगा। फरमाया इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, जड़ियाँ नेकियां न नेकियां गुनाहों को मिटा देंदियां। मैं अल्लाह ने तुहाडे उत्ते नमाज फर्ज की है ताकि मेरे बंदियां दे गुनाह माफ़ हो जान। रोज़ा फर्ज किया इस वास्ते ताकि मेरे बंदियां दे गुनाह माफ़ हो जान। मैं अल्लाह ने जितनियां इबादतां तुहाडे उत्ते फर्ज कीतियां ने दे अंदर तुहाडा फ़ायदा है ताकि मेरे बंदियां दे गुनाह माफ़ हो जान, मेरे बंदियां नूं तरक्की मिल जाए। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। कायनात दे लोगो जिहड़ा रमज़ान दे रोज़े रखदा है ईमान दी हालत दे अंदर व इहतिसाबन नेकी दी नीयत दे नाल, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह, अल्लाह उस बंदे दे सारी जिंदगी दे सारे गुनाहां नूं माफ़ कर देंदे। कुरान भी कह रहा इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, नेकियां गुनाहां नूं मिटा देंदियां। नमाज पढ़ोगे गुनाह मिट जाएंगे, रोज़े रखोगे गुनाह मिट जाएंगे। मैं अल्लाह ने जितनियां इबादतां भी तुहाडे ऊपर फर्ज कीतियां ने इस वास्ते कीतियां ताकि तुहाडे गुनाह माफ़ हो जान। दूसरी हदीस सुनिए गायबी बुखारी के अंदर, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़ाम रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबा, जिहड़ा रात दी नमाज पढ़दा है, रात नूं क़ियाम करदा है, तरावी पढ़दा है, तहज्जुद पढ़दा है, रात दी नमाज दा क़ियाम करदा है। मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान दियां रातां दे अंदर ईमान दे नाल नेकी दी नीयत नाल जिहड़ा क़ियाम करदा है, तरावी दा इहतिमाम करदा है, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह, ऐ नमाज तरावी पढ़न दी वजह तो अल्लाह ओहदे सारी जिंदगी दे सारे गुनाहां नूं माफ़ कर देंदे। कुरान भी कह रहा है कि मैं अल्लाह ने तुहानूं नेकियां करन दा इस वास्ते हुक्म दिता है ताकि तुहाडे गुनाह माफ़ हो जान। तीसरी हदीस सुनिएगा, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कामा लैलतल क़द्र ईमानन व इहतिसाबा, जेड़ा बंदा लैलतुल क़द्र वाली रात नूं क़ियाम करदा है, आखिरी इशरे दी ताक रातां दे अंदर कोई एक रात, फरमाया कि जेड़ा बंदा लैलतुल क़द्र वाली रात नूं क़ियाम करदा है गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह, और ईमान दी हालत दे अंदर सवाब दी नीयत नाल क़ियाम करेगा, अल्लाह उहदी सारी जिंदगी दे सारे गुनाहां नूं माफ़ कर देंगे। मैं अल्लाह की इबादत करके मैं अल्लाह की बादशाही के अंदर कोई फ़र्क नहीं आन लगा, नहीं करोगे तो मैं अल्लाह की बादशाही के अंदर कोई कमी नहीं आन लगे। मैं अल्लाह ने तुहाडे उत्ते जितनी भी इबादत फर्ज कीतियां ने इस वास्ते कीतियां कि इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, नेकियां तुसी करते जाओगे मैं अल्लाह तुहाडे गुनाहां नूं माफ़ करता जावांगा। आखिरी हदीस, मेरा अल्लाह बड़ा मेहरबान है। जदों मैं हदीस मुबारक पढ़ी है ना मैं हैरान रह गया। तुसी भी सुनो, एक होंदा है जितनी हदीसा मैं पेश की ने लफ़ज़ गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह, ओदी सारी जिंदगी दे पहले गुनाह माफ़ हो जाए। एक और हदीस पेश करने लगा, सही सनद दे नाल साबित है, सुनन अबी दाऊद, जामिअ तिरमिज़ी, इब्न माजा, हदीस दियां 3 किताबों के अंदर हदीस आती है। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा खाना खांदा है
अकला तामन खाना खांदा है, अल्लाह ने उसनू खाना नसीब कर दिता है। और खाना खाण तो बाद कहता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना व सकाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह तेरी ज़ात दा शुक्र है कि तू मैनू खाना अता कर दिता है। अल्लाह अगर तू खाना ना अता करदा तो खाना खाण दे अंदर हासिल करन दे अंदर मेरी कोई ताकत नहीं। ये जिहड़ा तू खाना नसीब कीता है अल्लाह तेरी अता है। मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहड़ा खाना खा के अल्लाह दी हम्द करदा है, दुआ पढ़दा है, मेरे महबूब ने फरमाया गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही व मा तअख़्ख़र, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही व मा तअख़्ख़र। खाना खा के अल्लाह दी हम्द करने वाले इंसान दे अल्लाह पहले गुनाह भी माफ़ कर देंदे और आइंदा जिहड़ा जिंदगी के अंदर गुनाह होणगे अल्लाह भी माफ़ कर देंदे। मेरे मालिक की कितनी करम नवाजी है, अल्लाह का कितना इंसान है, मेरे मालिक कितना अपनी मखलूक के ऊपर मेहरबान है कि बंदा गुनाह बाद दे अंदर करेगा अल्लाह माफ़ी का ऐलान पहले कर रहे हैं। खाना खाण तो बाद अल्लाह का जिहड़ा बंदा शुक्र अदा करता है मेरे बाबू फरमांदे ये कोलों गलतियां बाद दे अंदर होणगियां, गुनाह बाद दे अंदर होणगे, लेकिन कायनात दा रब पहले ऐलान कर रहा है गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही व मा तअख़्ख़र। जिहड़े तेरे कोलों अज तो पहले गुनाह हो गए मैं अल्लाह भी माफ़ करांगा। जिहड़े आइंदा जिंदगी के अंदर बैसीयत इंसान होणगे, गुनाह होणगे, करेगा तू बाद दे अंदर, लेकिन मैं अल्लाह माफ़ी का ऐलान पहले कर रहा हूँ। अल्लाह। दूसरा अमल फरमाया कि मन लाबिसा सौबन, जेड़ा बंदा नया कपड़ा पहनता है, नया कपड़ा पहली दफ़ा सूट पहनता है, पहली दफ़ा अल्लाह ने उसको अता किया है, नया कपड़ा पहनता है और नया कपड़ा पहनने तो बाद कहता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी, अल्लाह ये तेरियां तारीफन ये कपड़ा तू मैनू अता किया है। अल्लाह अगर एक कपड़ा तू ना अता करे इस कपड़े जो हासिल करने के अंदर मेरी कोई ताकत नहीं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं। अल्लाह जिहड़ा तू मैनू नया लिबास अता किया है दी ज़ात इहदे उपर मैं तेरा शुक्र अदा कर रहा। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आसमान से अल्लाह इतना खुश होता है इस बंदे के कलिमात सुन के, अल्लाह कहते हैं गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही व मा तअख़्ख़र। और नए कपड़े के ऊपर मैं अल्लाह दी हम्द करने वाले मैं अल्लाह दी तारीफ़ां करने वाले मैं अल्लाह ऐलान कर रहा कि मैं तेरी जिंदगी दे पहले गुनाह भी माफ़ कर दिते व मा तअख़्ख़र, और आइंदा भी जिहड़े तेरे कोलों गुनाह सरज़द होणगे तब बाद दे अंदर, लेकिन मैं अल्लाह माफ़ी का ऐलान तेरे वास्ते पहले कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह इत्थे कहते हैं अकीमिस सलाता, नमाज को कायम कीजिए, तरफ़म मिनल लैल तरफ़म मिनल लैल। मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे हो रहा है। मेरे महबूब पैगंबर खुद भी अपनी उम्मत को भी कह दियो कि दिन के दोनों किनारे के ऊपर नमाज का एहतमाम कीजिए। वज़ुलफ़म मिनल लैल, रात के कुछ हिस्से के अंदर भी यानी पंजा नमाज़ों का एहतमाम कीजिए। अल्लाह फ़ायदा की होएगा, फरमाया फ़ायदा ही होएगा इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यिआत। तू मेरी इबादत करेगा और मेरे बंदे मैं तेरे गुनाह माफ़ करांगा, तू मेरे सामने झुकेगा मैं तेरियां गलतियां माफ़ करांगा, तू मेरे सामने आएगा मैं तेरियां खतावां माफ़ करांगा। अल्लाह आखिर दे अंदर फरमांदे कि युज़हिबुन सय्यिआत ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। जिहड़े बंदे मैं अल्लाह नू याद करदे मैं अल्लाह उन्होंने नसीहत कर रहा। और मेरी याद के अंदर जिंदगी बसर करने वाले हो, और मेरी याद के नाल जिंदगी नमाज गुजारने वाले हो, मैं अल्लाह तुहानू नसीहत कर रहा। अल्लाह अल्लाह। इतनी मोहब्बत प्यार के नाल मां ने नसीहत कर दी, तीसरी कायनात दा रब अपने बंदे नू कर रहा।
فرمایا ذالک ذکریٰ للذاکرین، جڑے مینوں یاد کردے میری عبادت کردے میرے سامنے جھکدے میں اللہ انہاں نوں نصیحت کر رہا کہ نمازاں دی پابندی تسی کر لو، روزیاں دی پابندی تسی کر لو، صدقہ خیرات دی پابندی تسی کر لو، اے سحریاں افطاریاں دی پابندیاں تسی کر لو۔ میں اللہ تانوں نصیحت کر رہا کہ انہاں نیکیاں دے نال میں اللہ تواڈے گناہاں نوں معاف کر کے تانوں جنت دا داخلہ نصیب کر دیواں گا۔ الحمدللہ۔